So today we are going to see uh, block level and inline elements definition. We will see their definition only, and we will see some examples. So let's continue. So in HTML, you can divide all those text into two categories. One is block elements and second inline elements. Okay, so block element means an element that will start from always from the beginning of the line. It will take a new line and it will take the complete width of the web page. Okay, uh, then second category of elements are there. वो elements जो है they do not take the complete width, they just only take the required space. जितना उनको स्पेस रिक्वायर्ड है ओनली वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं. ओके, सो वी विल सी सम एग्जांपल्स. आई थिंक आई हैव शोन एग्जांपल्स इन माय लास्ट क्लास, है ना. हेलो हेलो. ओके ओके ओके, आई विल शेयर. सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. So let me repeat again. There are two type of HTML elements on a web page. One is called block level elements. So in case of block level elements, it takes the complete block. Like so it will take complete width. So जब भी आप एक block level element ऐड करेंगे पेज में, तो वो पेज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के पूरी width को ऑक्युपाई कर लेता है. ओके, एंड फिर उसके कंटेंट्स हैं उसी width में डिस्प्ले होंगे. एंड दिस एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन. Okay, like a paragraph we have seen. Paragraph everybody knows. When you insert a paragraph on web page, since it is a block level element, it takes complete width of the web page. जो भी available width है वो occupy कर लेता है and it always starts from new line. Okay, then there are second kind of elements. They do not start from the new line and they do not take the complete width of the web page. Okay, so such elements are called inline elements. Like you will see certain elements. Let me show you the examples. So these are the examples of block level elements. And these are the examples of inline elements. Okay, like your anchor tag, abbreviation tag, and so on. Now there is one important tag that you will use quite oftenly on your web page, that is division tag. So what does it mean? What does this tag do? So this tag actually helps you in aligning the contents of your web page, and it also helps them managing them. Okay, so आप क्या कर सकते हैं कि with the help of division tag you can organize the contents और द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज दैट यू पुट. सो आप चाहते हैं कि आपको एक इमेज डिस्प्ले करना है, सो आप इमेज को एक अलग ब्लॉक एलिमेंट के तौर पर या एक अलग कंटेनर में शो करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. या आप चाहते हैं कि इमेज और कुछ बटन्स इसके एक साथ डिस्प्ले हों, पास पास हों, और एक ग्रुप के तौर पर रिप्रेजेंट हो, एक ग्रुप के तौर पर डिस्प्ले हों. ओके, एक सेगमेंट के फॉर्म में डिस्प्ले हों पेज के. तो आप उन सारे एलिमेंट्स को डिवीजन जो है कंटेनर उसके अंदर put up कर सकते हैं. Okay, so div as a container element. So container element means it can contain other elements as well. We will see example in a short while. Okay, now this division tag is very useful, and you will use it quite oftenly. Now whenever you will deploy a division tag, you can change its certain properties. So the common property that you will work with or you will play with are style. You can so style property से आप इस division इसकी style को set कर सकते हैं. You can specify the class. So class का मतलब आगे जब आप CSS समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम CSS में आइटम्स की क्लास बना देते हैं और एक उस क्लास के आइटम्स की CSS डिफाइन कर देते हैं, सो दैट उस क्लास को बिलोंग करने वाले सारे आइटम सेम स्टाइल हैंडल एक्सेप्ट कर लें. ओके, So class attribute आप set कर सकते हैं. So once you set a class attribute
of a division div element. So it will take all the settings that have been specified for the elements of that class. सो CSS के फॉर्म में जो भी क्लास के लिए आपने सेटिंग डिफाइन की होगी, लेट्स से फॉन्ट आपने डिफाइन कर दिया, उसका कलर डिफाइन कर दिया, मार्जिन डिफाइन कर दिया, ऑल दोज पैरामीटर्स जो आपने उस क्लास के लिए डिफाइन किए हैं वो क्लास के पैरामीटर्स div एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेगा. देन यू कैन ऑल्सो असाइन ID टू div एलिमेंट, सो दैट आप एलिमेंट्स को फिर कई बार div एलिमेंट को आप रेफर करना चाहें तो आप कहीं ID से रेफर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. देन सो दिस इज योर ब्लॉक लेवल एलिमेंट. ओके, याद रखना है, दिस इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट. नाउ देयर इज वन मोर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड span, and span element is a inline element. Okay, so inline element means it will not start from new line, it will not take the complete width, जितना space required है it will occupy only that space. Okay, so inline element की मदद से आप एक टेक्स्ट का जो है आपके पास, सपोज यू हैव ए पैराग्राफ एंड यू वांट दैट सर्टेन सेंटेंस इन द पैराग्राफ और सर्टेन वर्ड इन द पैराग्राफ, ओके, और सेट ऑफ लाइन्स इन द पैराग्राफ शुड बी स्टाइल्ड डिफरेंटली, और लेट्स से दे शुड बी रेड इन कलर, और दे शुड हैव टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, और दे शुड लुक लाइक in a bold structure. So you can assign the certain properties with while embedding that text in the span tag. ठीक है, आप span tag में उस text को बंद कर दीजिए और span की property set करके उस text को आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं as per your need. Okay, so this will help you to do formatting of the text within a paragraph. So ये एक इनलाइन एलिमेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड इट इज़ नॉट ए कंटेनर एलिमेंट, सो आप इसमें दूसरा टैग कंटेन नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दीज वर द सिंपल टैग्स. देयर आर लॉट ऑफ टैग्स इन HTML. वी कैन नॉट एक्सप्लेन, वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल द टैग्स. ओके, so now I am going to discuss an important element of a web page, that is called form element. Okay, so form element is represented with the form tag. So your form tag will look like you will have form, then you will specify you will set certain attributes of the form, like you can set ID, name, then form will have certain actions and so on. And then this is a container, so you can put multiple HTML elements within this part, and then at the end you can close the form. Okay, so form is a container element, you should remember this. So it can contain other elements, and it can also contain div element. Okay, so containers को भी contain कर सकता है. Okay, so these are the properties of normal nature of the container elements. Now this form element allows you to group a set of elements in a logical way. कैसे करेंगे we will see. Okay, now one thing you should remember, whenever you will put a form on a web page, your form will not be visible. ठीक है, so it is a kind of hidden element, it doesn't appear on the web page. Okay, so you cannot see how many forms are there. You can add multiple forms on a web page, but you will not be able to see how many forms are there. Okay, but you can assign, or you can group elements within form, and then you can manipulate their values within form also with the help of some string, some form parameters. Okay, so your form element is a container element, so it can contain varieties of HTML element like text field. We will see in a moment क्या होते हैं. check boxes, सब लोग जानते हैं check box क्या होता है. radio buttons, submit button, reset button, password, email, etc. So various kind of input elements and other elements you can add in the form. Okay, so let's see one by one
what elements we can add in a form. So we can add lot of elements. We will not be able to see all of the elements, but we will see some of the important elements that are generally contained within a form. So first element is level. लेवल का मतलब क्या है कि आपको सपोज किसी एलिमेंट को एक यू हैव एनी एलिमेंट ऑन वेब पेज, सम एलिमेंट ऑन वेब पेज एंड यू वांट टू लेबल इट. सो फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक वेब पेज पे इनपुट बॉक्स ऐड कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स या और रेडियो बटन भी ऐड कर दिया सपोज दैट. देन आप उसको कुछ लेवल असाइन करना चाहेंगे, कुछ टेक्स्ट उससे एसोसिएट करना चाहेंगे. सो दैट टेक्स्ट कैन बी एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ लेवल टैग. ओके, so let me show you some practical part there, then we will see some more elements. So like division, you have seen this is div element. So this is my division have started, sorry, here it is closed. So div is started here and div is closed here, and I have grouped certain elements in this division box. Okay, so these elements will be actually grouped in a unit or in a block actually you can say, or they will be organized in a single entity. एक तरीके से एक साथ वो जुड़े हुए हैं, so they will be interconnected with each other. Okay, so you can put elements in this div tag. Similarly, I have put some more elements in this another div tag, then some more elements in another div tag. Okay, so you can assign group elements within the div tag. Now let's come to the form. So that you can see that I have used a form. Okay, you should remember that you can use multiple forms on a single web page. Many times you will require only one form in a web page, but it is not necessary. You can add multiple forms. Now whenever you will add form, you will start a form tag, and your form tag is let me show you where it is ended. So I have created a long so here it is ended. Okay, here the form is ended. So I have only one form, and within the form I have multiple div elements, and within div elements I have multiple input elements. Okay, so now let's see. So form have a set of attributes that are very important. First attribute of a form that you usually set is the name of the form. So you can assign a name to a form. Then you can also set the ID of a form, so that whenever you need to refer to that form somewhere else, you can access that form. Okay, with the help of name or ID. Okay, so generally name हम unique name और ID को unique ही रखते हैं, and it should be good. It should be made unique always. Then this is just an autocomplete property that I make on, so that it will retrain whatever you input, it will make a cache of that. आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप एक बार अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी वजह से आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन इट विल रिमेंबर योर ऑल वैल्यूज, प्रीवियसली एंटर्ड की गई वैल्यू है उनको रिमेंबर रखता है, जो वैल्यूज आपने इनपुट की हो. या आप गूगल के सर्च बॉक्स गूगल में जब सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा ब्राउजर भी आपके प्रीवियस सर्च हैं उनको रिमेंबर रखता है. तो आप कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो आपको सजेशंस दिखाने लग जाता है. तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आपने कई वेबसाइट्स में जो बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं, इनपुट बॉक्सेस, वहाँ देखी होंगे. ओके, सो दोज एलिमेंट्स दोज थिंग्स कैन बी मेड विद द ऑटो कंप्लीट ऑन प्रॉपर्टी. सो अब फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो भी इनपुट एलिमेंट्स हैं उनमें वो अपनी प्रीवियस इनपुट्स को रिमेंबर करने की कैपेबिलिटी शो करेंगे. ओके, देन देयर इज वन मोर एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, दैट इज मेथड, वन प्रॉपर्टी. So method we will discuss after a short while. So form is actually used to submit data to another script. Okay, so generally जब हम PHP पढ़ेंगे तब हम देखेंगे form के applications.
सो फॉर्म जब आप फॉर्म में जो इनपुट एलिमेंट्स हैं उसमें आपने जो इनपुट लिया है, यू नीड टू सबमिट दिस इनपुट और यू नीड टू प्रोसेस दिस इनपुट। ठीक है, जो यूजर कुछ इनपुट देगा आपको उसे प्रोसेस करना होगा। ओके, सो टू डू प्रोसेस you may require to send this data to another script or within the same script also. Ultimately you need to submit that data, so whenever you submit the form data you need to process it. So submission के लिए multiple methods हैं, like आपने नाम सुना होगा get post, we will talk about them later. So आप मेथड से बताएंगे कि हमें किस मेथड से फॉर्म डेट के डेटा को पोस्ट करना है। ओके, देन एक्शन में आप बताएंगे विच स्क्रिप्ट इज गोइंग टू प्रोसेस द सबमिटेड डेटा विद द यूजिंग द मेथड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर सबमिशन। ओके, सो ये फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हम जनरली अब जब हम PHP डिस्कस करेंगे तब देख पाएंगे, बट यू शुड रिमेंबर दीज कॉमन फॉर्म पैरामीटर्स। Okay, so now let's see how this web page look like. So this is the beginning part. I have put these components in a dev element. So ये मेरा first dev element है जिसमें I have put a label. So this is the label, first name. Then this is a text box, then last name and again text box. So I can input text there, है ना? You can also input text there and I can submit there using this button. Okay, so let's see how we can create this kind of labels and input boxes. Okay, so when you create a form you put certain input elements there, and you have a variety of input elements in HTML that you can display on web page. So first is text box. So अगर आपको अपने फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना है देन यू कैन यूज इनपुट टैग। सो जनरली सारे जो इनपुट एलिमेंट्स हैं उनमें हम इनपुट टैग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसकी जो टाइप प्रॉपर्टी है उससे हम वेराइटीज ऑफ इनपुट एलिमेंट्स रियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन क्रिएट variety of input elements using the type property of a input field, input element or input tag. So अगर आप if you require a text box जिसमें single line text required हो then you can use input or type equal to text. So let's see, I have created this. So first I have defined the label. Okay, so the label I have put first name. मैंने लाइन ब्रेक कर दिया, आप चाहें तो लाइन ना ब्रेक करें, यू कैन रिमूव दिस लाइन ब्रेक, तो दो बोथ विल बी डिस्प्लेड एट द सेम लाइन इस तरीके से। एंड सो ये तो मैंने लेबल डिफाइन किया। नाउ आई वांट टू डिफाइन ए टेक्स्ट बॉक्स, सो आई जस्ट यूज इनपुट टैग, मैंने लिखा इनपुट एंड टाइप इक्वल टू असाइन कर दिया टेक्स्ट, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। सो आपको टाइप की वैल्यू टेक्स्ट रखना है। आईडी, जो भी आपको आईडी असाइन करना हो, जस्ट यू शुड प्रोवाइड सम रिलेवेंट आईडी एंड नेम। जनरली हम आईडी और नेम को सेम रखते हैं, बट यू कैन मेक देम डिफरेंट एज वेल। सो आईडी से हम इस टेक्स्ट को अपनी प्रोग्रामिंग में, जब आप PHP में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ द आइदर नेम ऑफ द एलिमेंट और आइदर with the help of ID of the element. So जावास्क्रिप्ट में भी आप इन एलिमेंट्स को ID या नेम से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी दिस चेंज, क्या चेंज आता है इसमें। सो दिस इज योर वेब पेज। सो आप देख सकते हैं, अब आप जो ना लाइन का डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट नेम, दिस इज योर टेक्स्ट बॉक्स, देन सिमिलर टेक्स्ट बॉक्स आई हैव क्रिएटेड यूजिंग अगेन इनपुट इज इक्वल टू टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही रखा है मैंने। सो मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए एंड दीज आर द लेवल्स, ये लेवल की वजह से डिस्प्ले हुए हैं। ओके, यू कैन सी दिस इज द लेवल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड ये आपका, इफ यू लेट मी रिमूव दिस लाइन ब्रेक सो दैट दे विल लुक मोर बेटर। So now it is looking much better.
and now you can see that I have created two buttons there, submit button and reset button. So again input element जो है हम लेंगे. Now I want to define a button. So whenever you will set the type equal to submit, now you will get a button on your web page. आपके वेब पेज पर एक बटन फॉर्म में बटन डिस्प्ले होगा. हालांकि बटन टैग से भी हम बटन बना सकते हैं, बट वी कैन डू द सेम विथ इनपुट टैग ऑल्सो. तो इनपुट में टाइप इक्वल टू सबमिट कर देना है. आईडी और नेम आप डिफाइन कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, बट यू कैन ऑल्सो लेट्स से आईडी इक्वल टू सबमिट, और आप और कुछ भी रख सकते हैं. वैल्यू, सो वैल्यू जो है इसमें आप यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते थे वैल्यू करके, तो वो वैल्यू ऑलरेडी डिस्प्ले होगी. सो वेन एवर आई एम राइटिंग ए वैल्यू फॉर दिस टैग, सो दिस वैल्यू will be written to some other elements also. जनरली हम बटन के लिए वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू डिफाइन द वैल्यू. जनरली हमारे पास दो ही एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है बटन के लिए. एक तो उसकी आईडी, आप चाहे नेम दे सकते हैं, आईडी और नेम इंपॉर्टेंट है, एंड टाइप इक्वल टू सबमिट. सो दीज थ्री एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ओके, नाउ देयर इज वन मोर बटन, दैट इज रीसेट बटन. तो सबमिट बटन और रीसेट बटन दे हैव स्पेशल रोल और दे आर हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटी. व्हाट इज द स्पेशल कैपेबिलिटी? व्हेनेवर आप एक वेब पेज में बटन लगाते हैं, सो बटन जब एक फॉर्म के अंदर है, तो इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इट विल सबमिट द फॉर्म को सबमिट कर देगा. ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सबमिट बटन. और फॉर्म को सबमिट करने का मतलब है ऑल द डेटा ऑफ द इनपुट एलिमेंट्स विल बी सबमिटेड. ना वो क्वेश्चन आ रहा है जो था किसको सबमिट होगा, किसको सबमिट होगा? तो जो ऑब्वियसली जो स्क्रिप्ट फॉर्म के एक्शन में कॉल की गई है उसको सबमिट कर दिया जाएगा डेटा. एंड दैट स्क्रिप्ट कैन रीड द डेटा विद द हेल्प ऑफ some arrays or the some arrays जो कि आपके पोस्ट और गेट मेथड के थ्रू क्रिएट होते हैं. तो जनरली आप जब पोस्ट मेथड यूज करेंगे, देन एन एरे विल बी क्रिएटेड, एंड उसमें आपका पूरा फॉर्म का डेटा अवेलेबल होगा, और आप उस फॉर्म डेटा को फॉर्म के एलिमेंट्स की मदद से एक्सेस, नाम के आईडी या नेम से मदद से एक्सेस कर पाएंगे. ओके, वन थिंग. देन अगर मेथड आप गेट कर रहे हैं, तो गेट नाम से ही एक एरे जनरेट होगा. वी विल सी दैट इन PHP कैसे हम करेंगे, इनको वैल्यूज को कैसे रिट्रीव करेंगे और कैसे सबमिट होता है. ओके, नाउ देयर इज वन मोर बटन, दैट इज रीसेट बटन. सो रीसेट बटन क्या करता है कि आपने जो फॉर्म में जो कोई भी डेटा फिल किया है, तो रीसेट बटन प्रेस करने से वो जो एलिमेंट्स हैं, इनपुट एलिमेंट्स, वो क्लियर हो जाएंगे. सो लेट मी शो यू. सॉरी, let's say you put something there, you put something there, and reset से ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबमिट से सबमिट होगा. तो मैंने मेथड गेट इस्तेमाल किया है, तो आप देखते हैं URL बदल गया है मेरा. हालांकि अभी मैंने किसी को पोस्ट नहीं किया ये डेटा, बट योर डेटा कैन बी सबमिटेड. ओके, now let me come back to the slides. So similarly, अगर आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है, एंड आप यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया, वहाँ पे लेबल लगा दिया और ऊपर लिख दिया इनपुट योर यूज़र नेम. सो जनरली आप यूज़र नेम को हाइड नहीं करते हो, बट व्हेन जब आप यूज़र से उसका पासवर्ड एंटर कराते हो, देन यू शुड हाइड दैट पासवर्ड. ठीक है, सो आप यूज़र के पासवर्ड को नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में इनपुट नहीं ले सकते. सो यू शुड यूज ए पासवर्ड फील्ड फॉर दैट टास्क. सो पासवर्ड फील्ड आपको अगर अपने वेब पेज में रखना है, तो आप क्या करेंगे, टाइप इक्वल टू पासवर्ड स्पेसिफाई कर देंगे. आईडी और नेम और बहुत सारे पैरामीटर से आप वो सेट कर सकते हो इनपुट के लिए, बट मेन प्रॉपर्टी है टाइप. और अगर आप टाइप इक्वल टू पासवर्ड सेट कर देंगे, देन whenever a user will type anything, it will not be displayed. ओके, एक डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर आएगा और उसमें डिस्प्ले होगा. सो लाइक आई हैव क्रिएटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे यूज़र नेम, सपोज यू आर आस्किंग द यूज़र नेम,
and then you are providing the password. So now you can see that only dots are visible. हालांकि इन कैरेक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो. ओके, यू कैन स्पेसिफाई स्टार ऑल्सो. एंड सबमिट बटन है. तो सबमिट बटन क्या करेगा, ये इन एलिमेंट्स को सबको सबमिट कर देगा. जो भी फॉर्म में डेटा होगा दैट विल बी सबमिटेड. सो ये सबमिट बटन और ये सबमिट बटन सेम है. तो पासवर्ड फील्ड आपको क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड सेट लिख देना है सिंपली, और आपका आसानी से पासवर्ड फील्ड क्रिएट हो जाएगा. तो लेट मी शो यू द सोर्स कोड. यू कैन सी हियर. बाकी तो एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स सेम है. ये तो लेबल्स है. नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स ऊपर बनाया है मैंने, नीचे जो बनाया है दैट इज इंपॉर्टेंट. आई हैव जस्ट मेंशन टाइप इक्वल टू पासवर्ड. आईडी मैंने रखा हुआ है उसका और नेम रखा हुआ है एलिमेंट का. ठीक है. सो आप, मैंने PWD रखा है, आप कुछ और नाम रख सकते हैं. ओके. सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट ए इनपुट एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग ए पासवर्ड और एक्सेप्टिंग ए पासवर्ड फ्रॉम द यूजर. टाइप इक्वल टू सबमिट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फॉर्म हैंडलर एलिमेंट है जो सर्वर पर पेज को सबमिट कर देता है. अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप एक ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो है इसकी लेंथ 20 कैरेक्टर की होती है. अगर आप इसकी लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे देन इट विल बी ऑफ मैक्सिमम 20 कैरेक्टर. ओके, हम थोड़ी देर बाद कॉमन पैरामीटर्स इन एलिमेंट्स के हैं वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट कर देंगे. सो देन यू विल बी एबल टू क्रिएट ए रीसेट बटन ऑन योर वेब पेज. हाँ, नाउ आपने कई वेब पेज पर रेडियो बटन देखे होंगे. तो अगर आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है अपने वेब पेज पर देन इनपुट में एलिमेंट के लिए टाइप इक्वल टू रेडियो कर देंगे. सो इट विल क्रिएट ए रेडियो बटन. नाउ रेडियो बटन में खासियत ये होती है कि आप एक ग्रुप ऑफ रेडियो बटन बनाते हैं तो आपको मालूम होगा कि हम उसमें से एक ही बटन को चूज कर सकते हैं. ठीक है. दैट मीन्स ओनली वन बटन विल बी चेक्ड. अगर आपको चेकबॉक्स बनाना है देन आपको टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स इस्तेमाल करना है. अगर आपको नॉर्मल एक बटन डिफाइन करना है तो टाइप इक्वल टू बटन डिफाइन कर दीजिए. इट विल क्रिएट ए बटन. हाँ, अगर आपको एक कलर पिकर बनाना है, कलर पिकर, देन आप टाइप इक्वल टू कलर स्पेसिफाई कर देंगे. देन दिस कलर पिकर विल बी डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर. डिफरेंट ब्राउजर मेड शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिकर. ओके, सो लेट मी शो यू color picker if I have added there. So let's see the example. So पहले रेडियो बटन अगर आपको डिफाइन करना है तो ये तो लेबल हो गया. टाइप इक्वल टू रेडियो, ID, मेल, नेम, जेंडर. नहीं, so I have created a radio button there. Then another radio button is there. And another radio button is there. So सिर्फ आप देख सकते हैं, बाकी के एट्रीब्यूट्स वही है. रेडियो में वैल्यू में आप बता सकते हो कि वैल्यू क्या होगी. वैल्यू पर अब हम थोड़ी देर में आते हैं. तो आप देख सकते हैं मैंने एक रेडियो बटन यहाँ बनाया है. टाइप इक्वल टू रेडियो से आप देख सकते हैं. ID रखी है मेल, नेम रखा है इसमें जेंडर. ओके, एंड वैल्यू मेल. नाउ टाइप इक्वल टू रेडियो एनदर बनाया है मैंने एक, और इसका नाम रखा, ID रखी है फीमेल, और इसमें नेम रखा है जेंडर. नाम जानबूझ के मैंने सेम किया है सो दैट दे विल फॉर्म ए सिंगल ग्रुप. ओके, जब इनका ग्रुप सिंगल होगा तो क्या होगा, किसी में से रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है आप इनमें से किसी एक को ही चेक कर पाएंगे. ओके, नाउ जब ये बटन्स, सपोज दैट आप इनको अगर सबमिट करना चाहते हैं, इन बटन्स, इनके इनपुट को, या फॉर्म पर ये बटन्स हैं और इसे सबमिट करना चाहते हो, तो बटन के चेक होने पर एक वैल्यू जाना चाहिए. लेट्स से अगर यूजर ने ये बटन चेक किया तो उससे यूजर के पास या स्क्रिप्ट में सर्वर के पास जो वैल्यू जाना चाहिए वो मेल जाना चाहिए. अगर यूजर इसे ये वाले बटन को चेक करता है तो वैल्यू फीमेल जाना चाहिए, तो वैल्यू आपने फीमेल लिख दी. इस बटन के लिए अदर. ठीक है, तीन वैल्यू पॉसिबल है, मेल, फीमेल एंड अदर. आपने कई जगह पे देखा होगा फॉर्म्स में. तो आप इस तरीके से रेडियो बटन डिफाइन कर सकते हैं. उनका नाम सबका सेम कर दीजिए सो दे विल फॉर्म ए सिंगल ग्रुप. और जब सिंगल ग्रुप होगा तो उन ग्रुप ऑफ बटन में, रेडियो बटन में से केवल एक ही रेडियो बटन चेक किया जा सकता है. ठीक है, अलग अलग कर देंगे देन आप मल्टीपल चेक कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेडियो बटन हमेशा ग्रुप में अपीयर होते हैं. रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस, दे शुड फॉर्म ए सिंगल ग्रुप. ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट क्या है. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज ए ग्रुप ऑफ बटन्स. ये जो बटन है इसमें लेबल मैंने मेल रखा था, फीमेल एंड अदर, और आप देख सकते हैं इनमें से किसी एक को ही चेक कर सकते हो. ठीक है, तो जब इसे मैं चेक करूंगा और सबमिट अगर करता हूं तो ये बटन की वजह से वैल्यू क्या जाएगी मेरी, मेल.
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या स्पेसिफाई की है, मेल। ठीक है, दूसरा वाला बटन है, अगर मैं इसे चेक करता हूँ और फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ, देन द वैल्यू विल बी पास्ड टू द स्क्रिप्ट, सर्वर स्क्रिप्ट, और रिसीविंग स्क्रिप्ट विल बी फीमेल, एंड इसे चेक करके सबमिट करूँगा, देन अदर वैल्यू विल बी पास्ड। ओके, सो इस केस में वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू प्रॉपरली स्पेसिफाई करनी है कि किस बटन के चेक होने पर क्या वैल्यू सर्वर स्क्रिप्ट को सबमिट होनी है। ओके, और ये भी ध्यान रखना है, दे शुड हैव सेम नेम सो दैट दे विल फॉर्म ए सिंगल ग्रुप। अगर आप नेम सेम नहीं रखेंगे देन दे विल फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, सिमिलरली यू कैन क्रिएट चेक बॉक्सेस। सो चेक बॉक्सेस भी अगेन ग्रुप में क्रिएट होते हैं, तो आपको इनका नाम जनरली सेम रखना चाहिए, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। ओके, अगर आप नाम सेम रखोगे सो दे विल बिकम ए सिंगल ग्रुप, और उसमें आप मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। सो चेकबॉक्स बनाने के लिए आपको टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स लिखना है, देन आईडी नेम सेट कर देना, वैल्यू क्या होना चाहिए उस चेकबॉक्स के चेक होने पर, क्या वैल्यू पास हो वो आप वैल्यू में स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, सो रेडियो बटन और इनमें वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक प्रॉपर वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, सो दैट वो जो चेकबॉक्स यूजर ने चेक कर दिया है, तो वो सबमिट जब फॉर्म हो तो वो क्या वैल्यू फॉर्म को सबमिट करके दे, सो दैट वैल्यू जो आप यहाँ वैल्यू बताएंगे वो वैल्यू पास हो करके जाएगी। ओके, सो यू शुड बी remembering this fact. Now this is how you can create checkbox. So let me show you these are the check boxes. ठीक है, ये एक बटन है, तो आप इस बटन से सबमिट कर सकते हैं। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको एक कलर पिकर बनाना है, तो कलर पिकर के लिए इनपुट इक्वल टू आप कर देंगे टाइप इक्वल टू कलर। सो यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड ए कलर पिकर देयर, टाइप मैंने कलर कर दिया, आईडी उसके एक आईडी असाइन कर दिया और नेम असाइन कर दिया है। ओके, एंड लेट्स सी क्या किस तरीके का कलर पिकर आता है। तो ये तो हो गया उसका लेवल, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल सी ए कलर पिकर, तो आप इसके बेस पर अपना कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऑप्शंस में आपको कलर एक्सेस करना हो, कलर चूज करने की फैसिलिटी आप देते हैं ना समटाइम्स एट सम प्लेसेस, so you can use this color picker। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इस तरीके से, आपने कई वेब पेजेस में देखा होगा कि डेट आपको स्पेसिफाई कराना होगा, आपको यूजर को ऑप्शन देना है कि वो डेट इनपुट कर पाए, तो आप इस तरीके से एक डेट पिकर यूजर को दे सकते हैं, और इसके लिए आपको टाइप इक्वल टू सिंपली डेट सेट कर देना है। सो लेट्स सी, टाइप इक्वल टू डेट आपने कर दिया, मैंने लेवल लगा दिया एक बर्थडे, और आईडी और नेम असाइन कर दिया, एंड टाइप इक्वल टू डेट कर दिया। तो यहाँ से ये जो है ना आपको एक डेट पिकर या ये कह सकते हैं डेट बॉक्स शो करेगा इनपुट, जिसमें आप डेट इनपुट दे सकते हैं इसकी मदद से। तो यूजर को ब्राउज़र, हालांकि ये हो सकता है कि जैसे क्रोम में ये डेट पिकर इस तरीके से दिख रहा है, किसी और ब्राउज़र में थोड़ा सा अलग तरीके का दिखे। ओके, सो यहाँ से आप अपनी डेट चूज कर सकते हैं, एंड जो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जब ये बटन सबमिट होगा ये जिस फॉर्म में भी होगा, जो बटन सबमिट बटन अगर लगा है तो डेट में जो भी यूज़र ने डेट चूज की होगी वो जो ना सबमिट हो जाएगी सर्वर को। ठीक है, नाउ जो डेट है उसके डेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें मिन मैक्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो मिन मैक्स से आप मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट बता सकते हैं कि मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट क्या रहेगी। लेट मी शो यू इफ आई एम हैविंग एग्जांपल, ये है। ठीक है, सो आप अगर इनपुट इक्वल टू डेट कर दिया आपने, आईडी और नेम दे दिया, और मैक्स डेट बता दी कि मैक्सिमम डेट कितनी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली आप मिनिमम डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सो दिस इज द मिनिमम डेट। सो मैक्स और मिन जो पैरामीटर्स हैं ये कई सारे इनपुट में अवेलेबल होते हैं, तो डेट में भी अवेलेबल है, और इनकी मदद से आप मैक्स और मिन डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ समटाइम्स आपको डेट एंड टाइम भी चूज कराना हो, तो उसके लिए आपके पास बॉक्स है इनपुट टाइम, डेट टाइम आपको लिख देना है डेट टाइम लोकल। सो आपको विदाउट टाइम जोन जो है ना आप डेट एंड डेट्स शो कर सकते हैं अपने फॉर्म पर। सिमिलरली अगर आपको ईमेल इनपुट लेना है सपोज,
तो ईमेल इनपुट लेने के लिए आप इनपुट बॉक्स स्पेसिफाई कर दीजिए जहाँ पे आपको यूजर से ईमेल रीड करना है, देन जस्ट टाइप इक्वल टू ईमेल सेट कर देना है, बाकी पैरामीटर्स आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ईमेल। सिमिलरली अगर आपको फाइल इनपुट लेना है तो टाइप इक्वल टू फाइल कर देना है, और तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक जो आपका ब्राउज़र की जो एक्सप्लोरर टाइप का जो ना ऑप्शन वेब पेज में अवेलेबल हो जाएगा, और इससे आप फाइल्स को एक्सप्लोर करते हुए एक फ़ाइल को चूज कर सकते हैं। एंड देन आप अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में सबमिट बटन भी है तो उसे सबमिट करके आप फाइल को अपलोड भी करवा सकते हैं। ओके, सिमिलरली समटाइम्स कभी कभी हम फॉर्म में कुछ इनपुट एलिमेंट्स को हिडन भी रखना चाहते हैं। सो अगर आपको एक हिडन एलिमेंट बनाना है, वो हिडन एलिमेंट आपको यूजर को डिस्प्ले नहीं करना है, बट जस्ट आपकी कुछ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे मैं आप क्या चाहते हैं कि कुछ इनपुट हिडन होकर के अपने आप सर्वर के पास हो जाए, तो वो हिडन इनपुट एलिमेंट की मदद से कर सकते हो। सो ये जो है ना यूजर को विजिबल नहीं होगा। ओके, लेकिन इसमें जो वैल्यू होगी वो आप उसमें जो वैल्यू है वो आप सबमिट करा सकते हैं हिडन एलिमेंट से। सिमिलरली मंथ, अगर आपको केवल मंथ फिगर अलाउ करना है तो आप टाइप इक्वल टू मंथ लिख दीजिए। अगर आपको इनपुट में न केवल नंबर्स अलाउ करने हैं, आपको एक ऐसा इनपुट बॉक्स चाहिए जिसमें यूजर केवल नंबर इनपुट कर पाए, तो टाइप इक्वल टू नंबर लिख लीजिए। अगर आपको एक रेंज सिलेक्शन अलाउ करना है यूजर को, तो आप टाइप इक्वल टू रेंज ले लीजिए। तो इसमें एक बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसमें यूजर एक गिवन रेंज के बीच की ही वैल्यू चूज कर पाएगा। ठीक है, तो जो रेंज होगी डिफ़ॉल्ट वो 0 से 100 होगी, हालांकि इस रेंज को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं रेंज के एट्रीब्यूट्स की मदद से। देन सर्च फील्ड आपको डिफाइन करना हो, जैसे गूगल में आपने देखा होगा एक सर्च बॉक्स डिस्प्ले होता है, तो वैसा सर्च बॉक्स आप डिस्प्ले कर सकते हो। आई विल शो यू दीज एग्जाम्पल्स इन माई वेब पेज। ओके, तो टाइप इक्वल टू सर्च ले लेना है। अगर आपको टेलीफोन नंबर इनपुट लेना है तो टाइप इक्वल टू TEL कर दीजिए। तो टेलीफोन नंबर को इनपुट लेने के लिए बॉक्स आप वेब पेज पर डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको टाइम इनपुट लेना है तो टाइप इक्वल टू टाइम कर लीजिए। URL लेना है तो टाइप इक्वल टू URL कर लीजिए। टाइप इक्वल टू वीक केवल इनपुट लेना है तो आप वीक कर दीजिए। ओके, सो दैट मीन्स यू कैन सी दैट इनपुट जो है, इनपुट एलिमेंट आपके पास है, उसमें टाइप के पैरामीटर को आप चेंज करके, टाइप की वैल्यू स्पेसिफाई करके आप डिफरेंट टाइप के इनपुट बॉक्स जो है ना अपने वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू। लाइक डेट एंड टाइम इनपुट लेना है तो आपके पास डेट टाइम लोकल ये टाइप स्पेसिफाई कर दीजिए। अगर आपको ईमेल इनपुट लेना है तो टाइप इक्वल टू ईमेल कर दीजिए। अगर आपको फाइल रीड करनी है तो इनपुट में टाइप इक्वल टू फाइल कर दीजिए। सो लेट्स सी दीज एलिमेंट्स। सो ये तो हो गया आपका मिनिमम डेट रेंज, आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज वाली का, इससे कम की नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। एंटर ए डेट बिफोर दिस डेट ये लिखा हुआ है, इससे पहले की या इससे बाद की डेट, तो वो आप देख चुके हैं। डेट एंड टाइम इनपुट लेना है तो आपके पास ये फील्ड है, देखिए यहाँ पर आप डेट के साथ साथ टाइम का भी ऑप्शन है, आप टाइम भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल इनपुट करना है, ईमेल इनपुट लेना है यूजर से, तो उसके लिए टाइप इक्वल टू ईमेल वाला इनपुट बॉक्स ले लेना है। तो नाउ आप इसमें केवल ईमेल दे पाएंगे। सो ठीक है, और अगर आप इसको सबमिट भी करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली, सॉरी ये इस पर क्लिक हो गया फाइल वाले पे, अगर आप इसे सबमिट करने की कोशिश करेंगे और ऐड का सिंबल नहीं दिखेगा, ईमेल की फॉर्मेट नहीं दिखेगी, तो ये आपको तुरंत एरर मैसेज देगा। ठीक है, सो ये इनपुट बॉक्स ईमेल इनपुट लेने के लिए है। ये आपने कई बार देखा होगा, कई वेब पेजेस में देखने को मिलता है कि आपको जब फाइल रीड कराना है तो आप देखेंगे एक्सप्लोरर खुल गया आपका अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम का अवेलेबल, तो आप यहाँ से फाइल रीड करके इनपुट करके अपलोड करा सकते हैं। सो ये फाइल इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। हिडन इनपुट एलिमेंट है। ओके, सो फर्स्ट नेम ये तो दिख रहा है, वाई हिडन इज दिस। अच्छा, एक इसमें एलिमेंट हिडन है, अच्छा दो हैं दैट। सो एक एलिमेंट है इसमें फर्स्ट नेम, और दूसरा एलिमेंट जो था ना कस्टमर आईडी, जो इसका टाइप हिडन कर रखा है, इसकी आईडी है कस्टमर आईडी, और लेट से मैंने एक वैल्यू पास कर दी। सो ये कस्टमर की आईडी पास हो गई। यहाँ आप चाहें तो कोई वेरिएबल भी एंटर करा सकते थे, सो दैट यूजर की आईडी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के पास अपने आप चली जाए बाकी डेटा के साथ में, है ना। सो कई बार आप हिडन फॉर्म में लाइक प्राइमरी की पास करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं आपको, तो ये एलिमेंट आपके फॉर्म पर दिखेगा नहीं। सो लाइक सेड इसमें मैंने दो इनपुट एलिमेंट्स हैं, बट यू आर ओनली एबल टू सी ओनली वन एलिमेंट।
ठीक है. So this is your hidden element. Then आपको मंथ और ईयर केवल इनपुट लेनी है. सो टाइप इक्वल टू मंथ. सो दिस इज, ठीक है. ईयर अपने आप सेलेक्टेड है, यू कैन जस्ट चूज द मंथ. ठीक है. सिमिलरली ये जो रेंज वाला जो नंबर था, आप इसमें यहाँ से नंबर चूज कर सकते हैं रेंज इनपुट लेने के लिए. ठीक है. और ये एलिमेंट क्रिएट करना है यार आपको. सर्च फील्ड हो गया. ये है रेंज. टाइप इक्वल टू रेंज. आईडी मैंने वॉल्यूम असाइन किया, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. तो दो एलिमेंट्स हैं. एक ये इनपुट एलिमेंट है, ओके, और एक नंबर के लिए मैंने एलिमेंट लिया हुआ है. तो इसमें आप रेंज, ये जो एलिमेंट है इससे भी आप रेंज रियलाइज कर सकते हो. नाउ मैंने टाइप इक्वल टू नंबर लिखा है सो दैट यू कैन ओनली एंटर द नंबर्स देयर. नाउ इसमें आप वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. इसमें भी नंबर जो फील्ड है इसकी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो. कैसे? मिन और मैक्स पैरामीटर से. तो आपने इस फील्ड के लिए, ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स कैसा है, इसमें आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज ही इनपुट कर पाओगे, और वो रेंज ऑफ वैल्यूज आपके मिन और मैक्स की वजह से आ रही है. ओके. और चूंकि इसमें नंबर इनपुट होना है, क्यों होना है? क्योंकि आपने इसका टाइप इक्वल टू नंबर कर रखा है. ओके. सो ये दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, आप दोनों से सेम काम करा पा रहे हैं. बट ये जो ना इसका लुक अलग है, इसका लुक अलग है. ठीक है. बस. सो दोनों से ही आप रेंज इनपुट करा सकते हैं. बट ये एक तरीके से आपने अपना लॉजिकल लगा करके नॉर्मल नंबर इनपुट बॉक्स को रेंज बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है. तो इस तरीके से हम रेंज इनपुट ले सकते हैं यूजर से. सर्च फील्ड अगर आपको अलाउ करना है तो आप टाइप इक्वल टू सर्च कर दीजिए, आईडी नेम, और ऑटो फोकस का मतलब है कि इसमें फोकस अपने आप आ जाएगा. जब वेब पेज एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली जो फोकस है इस पर सेट रहेगा. सो हालांकि ये याद रखना, इसमें कुछ टाइप करोगे तो जरूर वो सर्च नहीं होगा. सर्च बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू कर देंगे. यू विल दिस विल बी जस्ट डिस्प्लेड एज ए टेक्स्ट बॉक्स. इसमें आप इनपुट करेंगे तो इनपुट पर जो कीवर्ड है वो लेकर के आप फर्दर बाद में किसी सर्च इंजन की मदद से सर्च करा सकते हैं. लेकिन ये नहीं है कि ये अपने आप सारा सर्चिंग और ये सब करेगा. ठीक है. इस तरीके से बॉक्स डिस्प्ले होगा. आप यहाँ कुछ इसको सजा भी सकते हैं अच्छे से, और इसमें जो यूज़र इनपुट करेगा आप उसे फिर सर्च इंजन को कॉल करके पास करके सर्च करा के उसे रिजल्ट शो कर सकते हैं. दैन टाइम आपको चूज करना है, तो टाइम के लिए ये बॉक्स है. और टाइम के लिए बॉक्स कैसे हम बनाएंगे? दिस इज टाइप इक्वल टू टाइम कर दीजिए. ओके. सिमिलरली अगर आपको URL इनपुट लेना है तो टाइप इक्वल टू URL कर दीजिए. ऑटो कंप्लीट से क्या होगा, ये जो ना URL को रिमेंबर करेगा, पिछले जो टाइप URLs हैं आपके उनको. अगर आपको केवल वीक इनपुट लेना है तो टाइप इक्वल टू वीक कर दीजिए. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी दैट टाइप जो वीक है वो ये है आपका. यहाँ आप वीक इनपुट ले सकते हैं. ठीक है. ओके. ये आपका यहाँ पे URL आप दे सकते हैं. ओके. ये आपका बॉक्स है. टेलीफोन के लिए इनपुट करने के लिए आपको बॉक्स बनाना है. तो ये तो फाइल वाला दोबारा ही कर दिया. मल्टीपल फाइल सिलेक्शन अलाउ करना है अगर आपको. जैसे क्या होता है, पिछला जो बॉक्स बनाया था ना मैंने, उसमें एक ही फाइल आप चूज कर सकते थे. लेकिन समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ बॉक्सेस जो है ना, फाइल सिलेक्शन बॉक्सेस मल्टीपल फाइल्स आपको अलाउ करते हैं. तो उसके लिए आपको ये सिंपली प्रॉपर्टी में यहाँ ये मेंशन कर देना है मल्टीपल. तो आप मल्टीपल फाइल चूज कर पाएंगे. ये तो टाइप टेक्स्ट हो गया समथिंग. नाउ फ़ोन अगर आपको अलाउ करना है तो आप इनपुट टाइप में TEL लिख दीजिए. सो नाउ ये जो बॉक्स है ये टेलीफोन इनपुट ले पाएगा. ठीक है. ये तो पैटर्न वाला है, ये है आपका फ़ोन वाला. ठीक है. So these are the some of the input elements that you can display on your web pages, and with the help of these inputs elements you can take input from the users. Okay. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं
जैसे अगर आपने एक चेक्ड प्रॉपर्टी है जो कि जनरली रेडियो बटन या चेक बॉक्स के साथ अवेलेबल होती है, तो आप अगर चेक्ड को बटन स्पेसिफाई करते समय चेक्ड लिख देंगे तो बटन ऑटोमेटिकली चेक्ड अवेलेबल होगा। सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, चेक्ड लिख देना है, कुछ वैल्यू नहीं है, ये चेक्ड लिख दीजिए, एट्रीब्यूट है। लाइक इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ, वेयर इज सम रेडियो बटन, लेफ्ट लाइट चेक्ड। तो जैसे ही मैं चेक्ड लिखूंगा तो ये वाला डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिखाई देगा, चेक्ड दिखाई देगा बटन। लेट मी रिफ्रेश द वेब पेज, वेयर इज, देखिए ये वाला चेक्ड है। अगर आप जिसको भी चेक करेंगे वो एक चेक दिखाई देगा। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू विद दीज बटन्स ऑल्सो। इसमें आपको एक ही को चेक करना है ग्रुप में, क्योंकि दे आर इन ग्रुप, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल को चेक कर सकते हैं। हाँ, हेलो, ओके, सो ये डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी बटन को डिसेबल करना चाहते हैं, सो डिसेबल का मतलब यूजर विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विद दैट इनपुट एलिमेंट, वो डिसेबल रहेगा। सिंपली डिस्प्ले तो होगा बट इट विल नॉट बिकम एक्टिव। सो आप डिसेबल्ड कर दीजिए, जैसे चेक लिखा है वैसे ही डिसेबल्ड लिख दीजिए तो वो डिसेबल हो जाएगा। देन मैक्स, अगर इनपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम लेंथ जो ना वो आप बताना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप बताना चाहते हैं कितना मैक्सिमम वैल्यू इसमें आ सकती है, तो मैक्स और मिन, मिन से मिनिमम बता सकते हो, मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। अभी आपने देखा था मैंने 0 से 50, सो भी जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो आप इस पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैक्स लेंथ, ये जो एट्रीब्यूट है ये आपके टेक्स्ट बॉक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, तो आप इससे टेक्स्ट बॉक्स में कितने साइज़ का या कितने लेंथ का इनपुट जाएगा इसे आप रेगुलेट कर सकते हैं। सो लेट से आप चाहते हैं कि 25 से लेंथ का ज़्यादा लेंथ का नहीं जाए, तो मैक्स लेंथ इक्वल टू 25 आप लिख देंगे। पैटर्न पर हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न बेस्ड इनपुट ही अलाउ करना है तो आप वो कर सकते हैं पैटर्न की मदद से। रीड ऑनली, अगर आप किसी इनपुट फील्ड को केवल रीड ऑनली बनाना चाहते हैं, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें पहले से आप कोई वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि यूजर इसमें कुछ इनपुट करे, तो आप उसे रीड ऑनली के तौर पर भी दिखा सकते हैं, यूजर उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स को या किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कंपलसरी है यूजर को इनपुट करना। ओके, तो अगर आपने रिक्वायर्ड जिस किसी भी इनपुट बॉक्स में लगा दिया, रिक्वायर्ड वैल्यू लिख दिया ये एट्रीब्यूट, देन उसमें इनपुट देना कंपलसरी हो जाएगा। आपने कई बार वेब पेज ऑनलाइन जब फॉर्म्स भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि कई फील्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनके सामने रेड स्टार आता है, तो आप रिक्वायर्ड कर देंगे वहाँ पर तो वो रिक्वायर्ड हो जाएगा और यूजर को इनपुट करना ही पड़ेगा उसमें, यूजर कैन विल नॉट बी एबल टू लेफ्ट दैट वैल्यू एम्प्टी। साइज, इनपुट फील्ड का जो हाइट और जो विड्थ है ना, वो कैरेक्टर्स में कितनी विड्थ रहेगी वो। स्टेप, स्टेप का मतलब जब आप एक इंटरवल डिफाइन करते हैं तो उसमें रेंज क्या होना चाहिए, 0 से 1 का डिफरेंस होना चाहिए वैल्यूज में कंटिन्यूसिटी में, तो वो स्टेप साइज आप डिफाइन कर सकते हो। जो वैल्यूज हैं इंटरवल में वो किस स्टेप से चलें, जैसे 1 से 5 का आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो स्टेप 1 कर दिया तो यूजर कैन ओनली चूज 1 1 2 3 4 5 डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगे। तो जो रेंज में जो वैल्यूज हैं उनका स्टेप साइज आप इस स्टेप से डिफाइन कर सकते हैं। और वैल्यू फील्ड तो आपको पता ही है कि उस फील्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वो आप वैल्यू से सेट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। मैं एक ये स्क्रिप्ट आपको शेयर कर दूंगा सो दैट आप इसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट करिए, प्ले करिए, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कौन सा वॉल्यूम, ये, हाँ तो ये वो रेंज वाला है ना, 0 से 50 के रेंज। इसमें स्टेप काउंट डिफाइन किया था आपने, स्टेप आप डिफाइन कर देंगे तो जैसे ये स्टेप ले रहा है तो आप चाहते हैं कि डिस्क्रीट वैल्यू ले या 2 के इंटरवल से वैल्यू ले, तो आप स्टेप काउंट डिफाइन कर दीजिए इसमें और मिन और मैक्स डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल न्यूमेरिक फील्ड था, उसमें मैंने मिन मैक्स लगा दिया था। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट रेंज नाम का एक वो है, तो दोनों का डिस्प्ले करने का तरीका अलग है, देखेंगे आप इसमें। इसमें स्लाइडर आ रहा है, ये क्योंकि आ रहा है ये इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज है। इसमें इनपुट टाइप न्यूमेरिक है, जस्ट मैंने इसमें ये क्या कर दिया है कि जो मैंने स्टेप काउंट 1 रखा है, स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि मिन और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर दी है, मैक्स
तो ये फील्ड में नंबर आ सकते थे, लेकिन मैंने इसको लिमिट कर दिया है मिन और मैक्स पैरामीटर से। अब मैं चाहता तो इसमें 0 से 100 तक की भी रेंज अलाउ कर सकता था, रेंज नहीं अलाउ करता तो फिर कोई भी नंबर आ जाता। ठीक है, तो मिन और मैक्स लगा देते तो आप इसमें इनपुट जो ये जो एलिमेंट है इनपुट बॉक्स, इसमें आप नंबर इनपुट कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट नहीं इनपुट कर पाएंगे। अगर आप इनपुट करेंगे देन इट विल गिव एरर, सबमिशन के टाइम पर देगा। वैसे तो टाइप नहीं करने देते हैं, अगर देखिए लेटर्स ले तो रहा है, बट जब आप इसे सबमिट करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वैलिडेशन लगा होता है ऑटोमेटिक इनमें। ओके, तो ये नॉर्मल न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें केवल मैं न्यूमेरिक डेटा दे सकता हूँ। ओके, तो इसमें आपने रेंज लगा दिए तो ये इस तरीके से स्लाइडिंग वाला टाइप के ये बटन्स आ गए हैं, अदरवाइज नहीं आते। और ये आपका रेंज बॉक्स है इनपुट वाला। ओके, तो ये हो सकता है कि हाँ 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 हाँ, नहीं तो वो मैक्सिमम सेट करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम सेट करना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट है ना, मैक्सिमम 50 है, तो यहाँ इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, एक जगह फिक्स नहीं होगा। हाँ, आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उतने पे ही सेलेक्टेड दिखाई देगा। वैल्यू अगर स्पेसिफाई कर देंगे तो जैसे आपने वैल्यू 25 कर दी तो हमेशा 25 पे बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज देगा तो 25 पे दिखाई देगा। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम आपको सेट करने का ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा ना। रेंज है ना, तो रेंज का मतलब एक लोअर वैल्यू और एक मैक्स अपर वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये रेंज बेस्ड बॉक्स है, तो लोअर और मिन मैक्स इसमें रिक्वायर्ड है। ओके।